Hi friends, welcome to my channel. I was just going to my previous videos and मैं कितनी cute लगती थी उसमें even with my white hair. I think my best of content अगर मैंने धड़ाधड़ recording की है it was the month of Feb. Trust me, not the entire month, if not entire month, it's the month of Feb. बिकॉज एक टाइम एक सिटिंग में मैं 3-4 रिकॉर्डिंग्स करती थी बैक टू बैक. आई सेड जितना भंडार है मेरा ज्ञान का, लेट इट फ्लो. एंड वो गाइडेंस भी रहता था. लाइक आई हैव टेकन वेरी वेरी सीरियस, वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक्स, राइट? So it's not easy to speak in one flow, right? But that time I think I was maybe a new chapter of my life, or that epoch making or epic kind of a new kind of an era is going to start. तो इसलिए वो पुराना फेस था. AD and BC बोलते ना, वैसे बिफोर क्राइस्ट आफ्टर क्राइस्ट वैसे. तो लोगों को लगता होगा कि ये अपनी प्रेम कहानी में मगसी, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट इवन इफ रिलेशनशिप अच्छा है, अच्छा होता है, अच्छा होता हुए बुरा भी होता है, तो बट फॉलिंग इन लव एंड बीइंग इन लव इज़ अ डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर. ओके, सो आई थिंक पीपल शुड गो थ्रू इट if they feel like, rather than saying ओ सबके इतनी दुखी कहानियाँ होती हैं. मैंने बोला नहीं, it's a part of life, right? It's part of life. अगर मुझे किसी चीज़ ने संभाला है तो कुकिंग, because that's not because I want to keep eating and eating. It occupies your mind and it keeps you alert. So people who are in depression and who are going through a bad time, they should have movement in their lives. Like, I'm not saying do not make this list very, like, trust me, I have just left things as they are. If they are moving, good for me. If they are not, I'm not bothered about it, right? So in the sense, what I mean to say is that instead of sitting and whipping yourself, just काम डाउन एंड मूवमेंट रहना चाहिए. जैसे सुबह शाम एक मूवमेंट, जैसे एवरी इवनिंग एंड आई गो एंड बाय लिटिल वेजिटेबल, लाइक कांदा, सॉरी प्याज, आलू, सॉरी ऐसे कांदा बटाटा, बिकॉज इन यहाँ मुंबई में वी यूज़ कांदा बटाटा और धनिया, लाइक नॉट फुल इन क्वान्टिटी विच आई कैन यूज़ इट, like and finish it off in 2-3 days time. क्या ना, people store a lot of things in the fridge और फिर वो rotten होके then we throw it, right? So and you should be very particular as what you're eating in a day. Like with me, I'm very clear when I wake up that I will have my dosas and I will have my rice, वो तड़का मारा हुआ rice, steamed rice, okay? Plain, no curries, no nothing. Very rarely if I make something, okay? So and dinner, usually 70% of the time I skip it unless and until I'm really hungry. So we have to understand ki how do we plan our lives. Do not go by these life coaches and these people who give you too many tips. Movement ज़रूरी है. Make it a slow effort. Slow for me, out of experience, very slow effort. Cooking पे ध्यान दो. When you start giving cooking, bathing, जैसे bathing twice a day, morning warm bath, evening, even if you wake up in the morning and have a cold shower, it's okay. But as I said, I used to get cramps, but I'm starting all over again my cold showers because the humidity is unbearable over here. It's raining and it's not raining, so depending upon the situation. And learn to clean your vessels, learn to clean your clothes, learn to clean your room. At least झाड़ू तो लगा दो यार. I'm not saying you should be like hygiene freak or like be obsessed with all neat and clean and in order and organized. मैंने बोला ये चोचलेपना होता है. जो लोग मन के साफ़ नहीं होते ना, उनको सराउंडिंग साफ़ चाहिए. सराउंडिंग्स भी साफ़ होने चाहिए, दिल भी साफ़ होना चाहिए, सीरियसली.
हाँ, ऐसा नहीं कि बस यही है। और मैंने ऐसे रॉटन लोग देखे। आई कैन टॉक अबाउट वन रिलेटिव हुज obsessed with keeping things in the right place, but one of the most rotten person I've ever interacted, like full of jealousy and hatred. फिर इनको ना नमस्ते नमस्ते करना पड़ता है ऑल द टाइम। लोग तो वेट करते थे लाइक वल्चर्स एंड हाइनास कि कभी कौन सा क्रीचर सैड है, मिजरेबल है, चलो चलो मज़े लूटते हैं थोड़ा सा। दे पीपल वांट टू सी डाउनफॉल, I'm emotionally exhausted, which I used to say that every time, कि इतने सारे इमोशंस खर्च हुए हैं ना पास्ट फ्यू ईयर्स, पिछले काफ़ी साल। एंड एक चीज़ मैंने सोची थी दैट व्हेन से आई एम इन द गल्फ आइदर आई माइग्रेट टू सम अदर कंट्रीज एंड इवन इफ आई कम बैक टू इंडिया आई वांट टू टेक इट ईजी। आई विल नॉट रन अराउंड लाइक अ रैट एनी मोर, आई विल नॉट सीरियसली, मुझे रैट की तरह भागना ही नहीं है unless and until I'm really like if people have seen my earlier videos and they have seen me, please comment if you have seen my I'll say before March and before March 2024 and after March 2024. Please let me know what are the changes which you all have seen. I think in the month of Feb I look really very pretty. I was looking very glowing, very pretty. बोलते ना when I most of the time तो मैंने फास्टिंग में ही निकाल दिया है लिटरली। फास्टिंग का भी असर था एंड लॉट ऑफ प्रेयर्स ऑल्सो। लोग बोलते ना खा पी के, मैंने बोला नो, ईट वॉट इज़ टू बी ईटन, डोंट बी लाइक हपशी, लाइक ये भी चाहिए वो भी चाहिए। सी शुगर, व्हेन यू गिव अप शुगर लाइक एज इन लाइक अनवांटेड फूड और फ्राइड फूड, नहीं खाना चाहिए। मैं ये नहीं बोलती कि अभी नहीं खाना चाहिए, लाइक डाउन साउथ में सब नॉन वेज है and here I'm eating only vegetarian, that too not even fruits, not even these leafy vegetables. I'm only sticking to aloo and karela, literally and तड़का मारा हुआ rice and my dosas, just this 4-5 things. okay, मैं बोर हो जाती हूँ नहीं, because I'm trying different varieties, different way to cook different things, plain rice is also heavenly the way you cook it, right? So and why are people being so this obsessed? खाना तुम अभी डिजिटल प्लेटफॉर्म में जब हम रहते हैं 24 आवर्स देयर आर एड्स, खाने पीने के एड्स, हॉलीडे के एड्स, ज्वेलरी के एड्स, कपड़ों के एड्स, वाहियात एड्स ही एड्स। जब तक देखो हम शॉपिंग करते रहते हैं। और आई यूज टू बी लेटली आई बिकेम फैसिनेटेड विद ऑल दीज ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी एंड ऑल दिस इंटिमेशन ज्वेलरी। ख़रीदना कुछ नहीं है, सिर्फ देख के आंखें भरना है। मैंने बोला अच्छा ख़रीदूँ, फिर वो पहनना किधर है, फिर पहनने के बाद वो रखना किधर है। मेरे तो यही चलते फिरते वही यही। ओके, जस्ट लुक एट दिस बैंगल्स, डोंट दे लुक नाइस? इट्स अ नाइस नाइस। तुम as simple you keep your look na, that much is better. Please give me your feedback about, I think before and after, what is the difference? I think I've become very vocal. I've been talking a lot of personal experience which I used to not do it earlier. यहाँ तक आ जाती थी बात and I used to just zip it up. और मेरी मॉम ना, उसको टीवी देखने का शौक़ रहता था। सो 8:30 जैसे हमारा डिनर हो गया, जनरली मेरा डिनर अगर मैंने कभी कर लिया तो फ्रॉम 8:30 to 10:30, जनरली 10:30 तक वो सिर्फ टीवी देखती रहती थी। दैट्स द टाइम आई यूज्ड टू डू माई रिकॉर्डिंग। मुझे पता था कि 10:30 वो अंदर आएगी, फिर वो पूरा वो गोलमाल हो जाएगा, फिर वो बातें करने लगेगी एंड ऑल दैट, पर्पसली, समटाइम्स पर्पसली ऑल्सो। तो दैट्स द टाइम व्हेन आई स्नैच सम ऑफ द। और मेरा वो बेडरूम का डोर, इफ़ यू कैन सी देयर इज़ नो डोर ऑल्सो। जब डोर भी था ना, वो बंद नहीं होता था प्रॉपरली। बट एनी वे दैट टीवी, शी वॉज हैप्पी इन अ लिविंग रूम एंड आई कुड फिनिश ऑफ वट एवर आई। दैट्स द रीज़न माई फेब में मैंने बैक टू बैक किया है, बिकॉज ऑफ दिस।
कहीं से मैंने वक्त को चुरा लिया, जैसे बोलते हैं ना, वैसे। ऑकल्ट साइंसेस, एंटिटीज़ के बारे में, ये इससे कुछ भी एंटिटीज़, और जब घर खाली रहता है तो एंटिटीज़ भी आ जाते हैं। और मैं 2 महीने वेकेशन पे गई थी और ऊपर से यहाँ पे इतना सारा कलेश हुआ था, तो डेफिनेटली आई एम श्योर दे कुड बी एंटिटीज़। दैट्स द रीज़न वाई माई एनर्जीज वर वेरी लो एंड नेगेटिव। कुड बी, आई एम नॉट सेइंग येस नो, बट तुम जितना उसके बारे में सोचोगे ना, तुम उतने डिप्रेस्ड हो जाओगे। When we change our lifestyle, it reflects on your face also, right? I looked more sheltered that time. I won't call myself timid, but a very reserved kind of a person. I'm still quite reserved. And I want to tell youngsters कि do not go by media made relationship, love, romance. ये कॉन्सेप्ट्स तुम मीडिया से मत लो। अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में देखो कि तुम्हें कैसा कंफर्टेबल लगता है। दुनिया भर के लोग वन नाइट स्टैंड्स कर रहे हैं, सिचुएशनशिप कर रहे हैं, कैजुअल फ्लिंग्स कर रहे हैं, फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स कर रहे हैं। दैट डजंट मीन यू आर ऑब्लिगेटेड टू डू दैट। पीपल विल कॉल यू अ लूज़र कि भाई ये देखो, ये कैरेक्टर अब तक वो स्टिल अ वर्जिन, और ये तो फट्टू है, ये तो ऐसी है, वो तो ऐसा है। तुम्हें किसी को कुछ आंसर करने की ज़रूरत नहीं है। थिंग्स विच आर नॉट कम्फर्टेबल, यू आर नॉट कम्फर्टेबल, ओके। और लोगों को सेक्स ऐसा क्या लगता है कि बस ऑमलेट बना के पाँव के साथ खा लिया, ऐसा कुछ है क्या? देयर आर लॉट ऑफ आफ्टर इफेक्ट्स। यू विल बी लाइक फीलिंग मिजरेबल, or you'll be feeling rubbish, or you'll be feeling used, you'll be feeling crappy. So many emotions when you lose your mental health. आजकल लोगों के अंदर मेंटल हेल्थ क्यों बढ़ चुकी है? क्योंकि वो खुद के प्रॉब्लम्स को दे आर इंक्रीजिंग देयर दे क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर देमसेल्व्स, ऐसा लगता है मुझे। Do give me some topics. Whoever has seen my videos, whoever is attached to my channel will know what I'm talking about. और मैं अपने videos में बड़े clearly बोलती हूँ। अगर जैसे AR रहमान के, मैंने बोला I will not touch that topic because एक तो वो South Indian है, his genre of music is completely different. Every song which is choreographed or done is done on a grand scale, and it's a completely different, वो different ही level है. That's the reason why I was not even singing those songs. फिर वो एक कहानी बन जाएगी और 3 घंटे उसमें लग जाएंगे. I was just taking up some songs which I know. सुनिया शुक्रिया मेहरबानी, तुम कहे तो नाम तेरे कर दूँ सारी जवानी. जैकी श्रॉफ एंड माधुरी दीक्षित, 100 Days. यही तो प्रॉब्लम होती है ना कि लोगों को लगता है इट्स जस्ट अ मूवी. इट्स नॉट जस्ट अ मूवी और अ टीवी सीरियल और जस्ट अ बुक. इट विल गेट इनटू योर हेड. जस्ट अ म्यूजिक, इट विल गेट इनटू योर हेड. एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन एजेंडा. तो अगर लोगों को मेरी चीज़ें बुरी लगती है, पहले तो आई वुड रिक्वेस्ट कि कमेंट करने से पहले, ओके, आई वुड रिक्वेस्ट कि तुम मेरा वीडियो एक बार नहीं 2 बार देखो. अगर समझ में नहीं आता तो 2 बार देखो, बिकॉज आई एम वेरी वेरी क्रिस्टल क्लियर एंड क्रिस्प. तो आई नो देयर इज़ अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट हो जाता है कि हम लोग टिप करके टाइप करें या जस्ट टू गेट टू कनेक्टेड विद मी. तो ठीक है, कोई बात नहीं, आई विल आंसर. मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है. आई एम नॉट सम प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया दैट आई डोंट हैव एनी टाइम और समथिंग. आई एम नॉट अ रॉयल्टी. सो आई विल आंसर, बट डीप डाउन आई विल फील, इज दिस पर्सन, क्या इसने ध्यान दे के मेरे वीडियो को देखा है या मेरे चैनल को जानता है? देयर आर लॉट ऑफ पीपल कमिंग रैंडमली टाइपिंग. मैंने बोला बहंडी, व्हाई आर यू टाइपिंग रैंडमली?
यू नो विद मी आई समटाइम्स इफ आई एम लिसनिंग टू लाइक मैंने बोला था जेमोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी, देयर इज अनदर पर्सन फ्रॉम Canada, Gautam Kamboj, young guys, these are Kamboj, these are young people who are in their late 30s, highly educated, फॉरेन में सेटल डाउन है, फिर इन लोग वैदिक एस्ट्रोलॉजी और ये सब करते रहते हैं, जेमोलॉजी करते रहते हैं, दे आर सर्टिफाइड जेमोलॉजिस्ट. आई डू लिसन टू इट समटाइम्स बिकॉज आई वॉज इन टू इट. तो मुझे अभी बड़ी हंसी आई अपने आप पर कि अभी ये ज्ञान दे रहे हैं, तुम क्या क्या पहनोगे, क्या क्या बेनिफिट्स लोगे. तुम्हारे कर्मा अच्छा नहीं है तो तुम कोई बेनिफिट नहीं मिलता है. जो तुम्हारे नसीब का है वो उतना ही खाओगे, वही पहनोगे, वही रहोगे. और आई टेल यू, आई गिव यू माई एग्जाम्पल. ओके, आई यूज टू, मेरी थिंकिंग हमेशा ग्रैंड रहती थी. आई रिमेंबर किसी एक इसमें पूछा गया था व्हाट डू यू सी इन अ फॉरेस्ट. मैंने बोला आई वुड सी अ कॉटेज, क्योंकि मुझे फेरी टेल्स दिमाग में घुस गए थे ना बचपन में. तो मुझे ऐसा लगता है फॉरेस्ट के अंदर एक कॉटेज होनी चाहिए. एंड वेयर आई वॉज स्टेइंग इन डाउन साउथ ना, वहाँ पे मेरी एक फ्रेंड बन गई थी, मतलब मेरी रिलेटिव की ही मतलब रिश्तेदारी थी वो. तो बट शी वॉज़ वेरी फ्रेंडली विद मी. तो आई हैव स्टेड इन हर हाउस एंड इट वॉज इन द मिडल ऑफ द फॉरेस्ट. लेकिन है घर आसपास है, लेकिन इट वॉज लाइक चारों तरफ से जंगल था. पीछे के उन लोगों ने काटा था जंगल. सो आई वाज जस्ट थिंकिंग आई लैंडेड ओवर हियर ऑल्सो. इट कॉटेज, ब्यूटिफुल हाउस. आई was just thinking, and I'll tell you another thing also. I'll tell you, there was a period in my life where I always wanted to buy a terrace house. पता नहीं मुझे क्यों वो क्रेज़ था वो टेरेस हाउस का. तो मैं जहाँ कहीं भी रही हूँ ना, अगर इंडिपेंडेंटली भी रही हूँ, तो आई हैव लिव्ड इन अ वेरी लैविश अपार्टमेंट विद द टेरेस. लाइक रियली आई हैव गॉट दीज काइंड ऑफ चांसेस. अगर मैं वेकेशन पे भी गई हूँ तो रूम्स, मुझे याद है मैं गोवा गई थी फॉर 2 days. जस्ट लाइक दैट मेरा मन किया तो मैं गई थी. एंड आई वॉज़ वेरी वेरी सिक. गई थी एंड आई रिमेंबर जहाँ पे बुकिंग हुई थी मुझे वो रूम नहीं मिला. आई गॉट अ टेरेस फ्लैट. एक फॉरेनर ने वो कैंसिल किया था लास्ट मोमेंट और दिसंबर का टाइम था. एंड आई गॉट दैट फॉर 2 or 3 days. आई गॉट दैट. वेर एवर आई हैव गॉन, मैंने कदम रखे, आई हैव लिव्ड इन अ टेरेस फ्लैट. तो पता नहीं समटाइम्स यू अट्रैक्ट सच थिंग्स, यू नो, कि तुम्हारे जो तुम्हारे दिल से आती है ना वो चीज़. मुझे ना हर चीज़ ग्रैंड स्केल पे चाहिए थी. तो आई एम जस्ट थिंकिंग ये सब लकी इनफ. एंड आई वाज लिविंग आउट ऑफ बॉम्बे, दैट ऑल्सो वॉज नेक्स्ट टू द स्टेशन. एंड इट वॉज अ टेरेस फ्लैट 2000-3000 स्क्वायर फीट का. वो टेरेस ही इतना बड़ा था. द रूम, यू नो ना, वहाँ पे रूम्स तो इतने स्टूपिड तरीके, बिल्डिंग स्टूपिडली बांधते हैं. बट या बिकॉज आई न्यू समबडी, वो जो इन्वेस्टर्स थे मैं उनको जानती थी फ्रॉम द गल्फ. आई एम जस्ट टेलिंग यू, टेरेस. और मेरा एक फीलिंग था कि मेरा एक घर होना. तो आई यूज्ड टू डू हाउस हंटिंग. और यहाँ पर भी मैंने काफ़ी हाउस हंटिंग किया था 20 साल पहले. मैंने बोला एक मेरा घर हो यहाँ पर. दो आई हैड माई फादर, दिस माई पेरेंट्स का घर. आई यूज टू थिंक कि मेरा एक घर होना चाहिए. देखा जाए तो नाउ आई एम लाइक मेरा ही घर है ये. एंड आई टू गो अराउंड लुकिंग फॉर लाइक हाउसेस. तो इट्स तुम्हारी इंटेंशन क्या है. इज़ इट अलाइनिंग, आर यू गेटिंग दैट, आर यू क्लोजर टू इट. तो अहमदाबाद आई स्टेड इन अ terrace flat. I'm telling you. So whatever if your intentions are very clear and वो तुम्हें उस टाइम पे मिल जाती है ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या है, वो तुम्हारे नसीब की बात होती है. वरना मैं मुँह से कितना भी फूटूँ टेरेस फ्लैट, अगर नहीं है नहीं मिलेगा. बट ये मेरे नसीब का था तो मुझे मिल गया. और घूमना फिरना, लोग भी ऐसे मिल जाते थे. घूमना फिरना, मेरे पास भी कुछ नहीं होता था, गाड़ी मेरे फ्रेंड्स के पास, घूमना फिरना ऐसा हो जाता था. इवन इन द गल्फ, बैक टू बैक. तो मैं यही चीज़ बोलती हूँ कि दिस इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि व्हेन यू हैव समथिंग इन योर माइंड, वो तुम्हारे नसीब की है, वो तुम्हारे नसीब की ही है. कहीं नहीं जाता है, कहीं नहीं, वो तुम्हें ही मिलता है. सो इवन विद पीपल, when people are not there in your life, they're not supposed to be there in your life. अभी मेरा देख लो, जब तक हमारा अच्छा था वो अच्छा था, नहीं है. टाइम आ गया कि वो ऑटोमेटिकली निकल गया. एंड वो उस टाइम पे निकल गया जबकि मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी. कि आई यूज़ टू लुक अप कि ये पर्सन इतनी सारी बातें करता है, यहाँ ये वक्त पे क्यों नहीं है ये पर्सन. तो ये ऐसा होता है.
तो अपने दिल को छोटा मत करो, अपने आप को छोटा मत समझो। ये सोचो कि खाने पीने की चीज़ भी नसीब की मिलती है। समटाइम्स यू आर सपोज टू गो टू अ पार्टी और वो कैंसिल होके तुम कहीं और चले जाते हो, कहीं और का खाना तुम्हारा लिखा हुआ होता है, तुम वहीं पहुंच जाते हो। जैसे आई गिव यू वन एग्जाम्पल। मैं वहाँ की बात करी हूँ, गल्फ की बात करी। मेरी एक रूममेट थी, शी हैड गॉन टू द मंदिर। फिर वो जा रही थी तो मैंने उसको बोला, देख यार, मैं गुरुद्वारा का जो लंगर का प्रसाद है ना, मेरे लिए लेके आई। शी सेड नहीं नहीं, वो एक ही देते हैं और मुझे नहीं लगता मैं लेके आऊँगी। शी वेंट देयर, शी वेंट टू हाँ मंदिर, वो शिव मंदिर, एंड देन शी वेंट टू गुरुद्वारा एंड शी बॉट फॉर हर सेल्फ। शी सेड मैंने अपना पैकेट लिया, फिर वो पर्सन ने फिर से बुला के उसको दूसरा पैकेट दे दिया, दूसरा लंगर का वो चना और ब्रेड। शी से आई कैन नॉट बिलीव दैट तुम्हारी भक्ति इतनी ज़्यादा है कि दैट पर्सन कॉल्ड मी बैक एंड ही गेव मी एन एक्स्ट्रा पैकेट। और आई एम नॉट सेइंग आई एम समथिंग ग्रेट, ये तो मेरे मन की वो थी, बिकॉज आई यूज़ टू विजिट ऑल प्लेसेस ऑफ वर्शिप। सेक्युलर होना मैं सबके साथ मस्का पालिश। शिव मंदिर में मुझे वो शिव एक रॉक स्टार लगता था, एक नंबर का शिव जी सीरियसली। और वो पानी के पास रहता था ना, तो आई यूज़ टू गो फॉर माई वॉक्स एवरी डे आफ्टर ऑफिस एंड आई यूज़ टू विजिट दोज प्लेसेस। ऐसा तो आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल कि कहाँ पहुँचना है। एक है शिरडी का साईं बाबा का, वो एक लेडी वहाँ पे गई थी, वो मुझे उसने उसका वो बांधा उसने मेरे हाथ। सी ये उनकी भक्ति रहती है यार। मैं थोड़ी मैंने बोला शिरडी मैंने कभी सोचा नहीं है। अभी वो साईं बाबा का मैं इतनी बड़ी भक्त भी नहीं हूँ, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल। वो उनकी भक्ति वो मुझे दे रहे। बट अबाउट दैट लंगर का थिंग पता नहीं मेरे मन से क्यों निकला। और कुछ श्राइन जैसे चर्चेस भी रहते थे ना, जहाँ पे एक मुझे पता है वो एक डाउन साउथ में वो सिस्टर सिंग ऑलमोस्ट 1.5 year आई एम प्लानिंग टू गो टू दिस श्राइन। इट इज़ ऑन अ माउंटेन। वहाँ पे शिव कृष्णा का टेम्पल भी है और ये सेंट जोसेफ वास करके इट इज़ ऑन अ हिल ना। तो उनको ना कोई मारने आए थे, तो वो धरती से फट के वहाँ पे वो लाइट आ गया था। तो वहाँ पे देयर इज़ अ कुआं दैट इज़ ऑलमोस्ट 200-300 years ago। सो इट्स अ वेरी वेरी पावरफुल प्लेस, इट्स अ वेरी भक्ति वाला प्लेस। ओके, यहाँ पे कृष्णा टेम्पल है और वहीं पे वो दोनों चीज़ें हैं बैक टू बैक लाइक। और वहाँ पे साउथ में क्या होता है ना, दैट वो खाना देते हैं लाइक यू नो व्हेन यू मन्नत एवरी फ्राइडे होता है शायद से वो। सो वहाँ पे तो मुझे जाने का कोई इंटेंशन ही नहीं था। तो व्हेन माय रिलेटिव्स मासी है ना, तो सडनली सेड वी आर गोइंग देयर। अब मुझे नहीं पता एंड शी सेड यू आर वेरी लकी, तुम्हारे वजह से मैं वहाँ पे पहुँच गई, वरना मुझे तो कभी चांस नहीं मिलता। मैंने बोला मैंने तो नाम भी नहीं सुना, आई डोंट इवन नो दिस श्राइन। तो काफ़ी सारे जो श्राइन्स हैं ना, स्पेशली वहाँ पे और एक श्राइन है विच इज़ ऑन द माउंटेन, बहुत ही फेमस श्राइन है। वो दुनिया भर के लोग वहाँ पे जाते हैं। वो सेंट लॉरेंस का है इन कारकल वो कारकल ही बोलते हैं उसका, कारकल डिस्ट्रिक्ट। वहाँ पे पहुँच गई मैं। वहाँ पर भी वो खाना रहता है। मैंने बोला, और वहाँ पे मैंने अपने किसी कम्युनिटी की आंटी को भी देखा वहाँ पे दुनिया भर के लोग पहुँचते हैं। इट्स सच अ पावरफुल, दुनिया भर की मुस्लिम्स, हिंदू, कितने जन क्रिश्चियंस वहाँ पे पहुँचते हैं। जैसे हमारा माहिम का मदर मेरी का नवीना रहता था ना, 9 days लोग ऐसे लाखों में लोग आते हैं। लिटरली आई एम टेलिंग यू, इतनी भक्ति रहती है। तो आई वॉज जस्ट सेइंग कि आई नेवर थॉट आई गो देयर, बट इनके साथ मैं चली गई वहाँ पर। तो ये ऐसी जगह जहाँ तुम्हें पहुँचना है तुम कैसे भी पहुँचते हो। मैंने बोला इतनी बार मैं नेटिव, जब मैं बचपन में भी जाती थी, कभी इसके बारे में नहीं सोचा, जबकि मेरा माई डैड्स प्लेस इज़ फार मोर क्लोजर टू दैट प्लेस। ओके, यहाँ तो हम लोग ऑलमोस्ट वी कैन से 100 kilometers पार करके आए थे। हाँ, मेरी मासी स्टेज एंड वेयर इज़ दिस प्लेस, यू कैन से ऑलमोस्ट 70, 80, 90 किलो 100 kilometers आराम से निकल जाए, कहीं नहीं जाता है, बिकॉज इट वॉज प्रैक्टिकली वेरी फार। ओके, गाड़ी में 2-3 घंटे लग गए हमको। तो यू कैन इमेजिन हाउ इट इज़, यू नो, जहाँ पहुँचना होता है वहाँ पहुँच जाता है। जो तुम्हारे नसीब का है। एंड पीपल से ना डेथ इज़ नॉट प्री डेस्टाइंड, डेथ इज़ प्री डेस्टाइंड। इफ़ यू आर
if your birth is destined in this particular place you have to live, these are your parents, these are your siblings, this is your environment, तुम कुछ नहीं कर सकते हो, दिस इज़ तुम्हें भुगतना ही है. इट्स लाइक जीसस के वो हमारे कैरी द क्रॉस करते ना, उनकी क्या गलती, बट ही हैड टू कैरी हिज क्रॉस एंड गेट क्रूसीफाइड ना. वैसे वो सारे कैरेक्टर्स को मैंने डिस्क्राइब भी किया है. पॉन्चियस पायलट, हाँ कर लो कुछ जो करना है. जूस, तो ये मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ कि लोग इतने एक्साइटेड हो जाते हैं ना कि ये कैसे है, ये क्या हो रहा है करके, राइट ना. टेक इट एज इट इज़. बिंदी नीचे गिर गई मेरी. हाँ तो वो एक चीज़ है. और क्या मैं बोलने वाली थी, वही. सो डेथ इज़ ऑल्सो प्रीडेस्टिन्ड. अब मेरी मॉम का ही ले लो, उसको मैंने मौत के मुंह से बाहर निकाला है. ओके, वो ठंडी हो रही थी, 3 घंटे बैठ के मैंने उसको टोटल हैंड पैर को मसाज कर करके वार्म करके, अगर ये अस्पताल जाती वो वापस नहीं आती. मैं 3 साल कोविड के टाइम के, मैंने बोला कोविड लगाते आईसीयू में डालती, लाखों का खर्चा होता एंड शी वुड नेवर कम बैक बिकॉज दैट्स द टाइम दे वर लाइक एलिमिनेटिंग. आई होप यू अंडरस्टैंड. सो अभी उस चीज़ से मैंने उसको बाहर निकाला है. बट इस बार इट वॉज़ अ वेरी माइल्ड थिंग. हर टाइम हैड कम, टाइम्स अप. और वो मुझे पता था कि ये टाइम्स अप, टाइम्स आने वाला है उसका. बट वो मानने के लिए तैयार नहीं थी और मैंने उसको काफ़ी उसको साइंस और वार्निंग्स दिए. मैंने बोला डोंट कंटिन्यू दिस बिकॉज इफ़ यू विल डू दिस शो. मानने के लिए तैयार नहीं थी, और ज़्यादा घमंडी. अरे देखो मैं इसमें से भी बाहर निकली, अरे मैं सबको, मैं हर चीज़ से बाहर निकलती हूँ एंड आई विल बी ऑन माई 2 feet एंड आई गो हॉपिंग स्किपिंग लाइक अ कैंगरू. अभी भी प्राउड नहीं होना चाहिए किसी चीज़ के ऊपर. और ना जिन्होंने मुझे दुख दिया, मेरे कलेजे से हाई निकलती है. मैंने बोला भगवान यार, मेरी 2 आँखों से मुझे देखना है, सुनना है कि आई वॉन्ट टू सी देयर डाउनफॉल. और कुछ लोगों का तो मैंने अपने आँखों से देखा है. हाँ, मेरे स्वतः के क्लोज रिलेटिव्स का देखा है. वो विशिंग रियली बैड फॉर मी एंड अभी थिंग्स हैव व्हील ऑफ फॉर्च्यून, इट हैज टर्न्ड, राइट. आई शुड नॉट बी सेइंग दिस बट आई एम सेइंग दिस. ऐसा तुम लोग ने मुझे दुख दिया ना, सो आई वॉन्ट टू सी इट विद माई ओन आइज. जस्टिस, कर्मों का फल. ओ माय गॉड, मैंने बहुत ज़्यादा बात कर ली. वीडियोस भी बहुत लंबे बनते जा रहे हैं. चलो बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ.